Good morning, Pooja. We can start the program now. Good morning, sir. We are delighted to have such a wonderful response. Absolutely. Good morning to people who are in America and good evening to everybody who is in India. Yep. So thank you everybody for joining us today on this session on diet purification. I hope you all are keeping safe and doing well. My name is Pooja and I'm the founder of Sattva that aims towards mental and physical well-being of all of us. And I'll be talking about this more in the session today. So before we start, few housekeeping items. Let's keep ourselves on mute so that there's no disturbance to others. We do have time allocated for questions and answers towards the end. And I also encourage you to put your questions on the chat box and we'll be keeping a track of those. All right, so with that, let's start. I'm very happy to have Dr. Vikram with us. Here, he's my mentor and guide, and here is some background about Dr. Vikram. He's PhD in environmental engineering from Virginia Tech, US. He's currently CEO of Peace USA, an independent consulting practice that he's set up to provide environmental direction and solutions. He's an avid follower of natural plant-based diet, and he'll be talking more about it today. He mentors those who are interested in following this natural diet lifestyle, both for a disease-free life experience and also for sustainability of our planet. He's conducted various sessions on natural diet and lifestyle, importance of yoga, and Bhagavad Gita teachings as well. He's a yoga practitioner for 4 decades now, and he's also a keen student of application of Vedanta principles in our daily lives. Here are a few glimpses of Dr. Vikram practicing yoga asanas, and he'll talk more about his flexibility, body flexibility when he talks about natural diet and lifestyle. So with that, sir, I hand it over to you. The floor is all yours. Thank you, Pooja, for this introduction. I'm going to try to start sharing my own screen. So all of you should see Transform Your Life Through Diet Purification. That is the screen you should all see. Hopefully you can all see that. Yeah, we can see it, sir. Fantastic. So this is what I always say first in any of my webinars, a disclaimer. The information here is not intended for the purpose of providing medical advice. Okay? All information and the material I'm presenting here is for your information and not intended to serve as a substitute for consultation, diagnosis, and medical treatment from a qualified physician or a healthcare provider. I'm presenting only my experience and I do not undertake any liability whatsoever. So if you want to follow anything I'm saying, you should consult with me first and then under direction you should follow. You should not follow anything what I'm saying on your own. मैं ये जो बता रहा हूँ ये मेरा अपना अनुभव है. इसको बिना सोचे समझे या मुझसे बात किए बिना अगर आप इसको करना चाहेंगे, उससे अगर कोई आपको समस्या होती है तो इसके लिए मेरा कोई दायित्व नहीं है, ऐसा मैंने कहा है इसमें हिंदी इंग्लिश में. तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे आज. वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज ए नेचुरल डाइट. ये प्राकृतिक अन्न क्या है, व्हाई शुड आई फॉलो ए नेचुरल डाइट, हमने ये क्यों करना चाहिए. रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारे कुछ मित्र हैं जिन्होंने ये किया है और जिनको बड़े अच्छे अनुभव आए हैं, हम उसको शेयर करेंगे. हाउ डू आई ट्रांजिशन इनटू अ नेचुरल डाइट लाइफस्टाइल. इसको अगर हम जिस प्रकार का अन्न खा रहे हैं और हमें प्राकृतिक अन्न में प्रवेश करना है तो इसको कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे. और उसके बाद में आपके अगर कुछ प्रश्न होंगे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, वी विल टेक दोज. और हिंदी में भी कर सकते हैं आप, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं. अगर आपको अंग्रेजी अगर ठीक से नहीं आती हो या उसमें आप सुविधाजनक नहीं लग रहा है आपको, तो आप हिंदी में पूछ सकते हैं. सो व्हाट इज नेचुरल डाइट, व्हाट इज, ये प्राकृतिक अन्न है क्या. दिस इज प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकृति में जो अन्न तैयार होता है प्राकृतिक प्रक्रिया से, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अन्न तैयार करते हैं. तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएंगे फ्रूट्स, सोक्ड नट्स एंड सीड्स, मतलब जो दालें होती हैं या नट्स होते हैं या बीज होते हैं, उनको भिगो करके हम खा सकते हैं. वेजिटेबल्स या सब्जियां वगैरह जो कच्ची खाई जा सकती हैं, वही
जो बिना पकाए खाई जा सकती है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, और स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड लेंटिल्स, तो ये जो दालें होती जैसे मूंग की दाल हो गई या चने की दाल हो गई, उसको भिगो करके उसको अंकुरित किया जाता है, उसको कहते हैं स्प्राउटिंग। सो नेचुरल फूड कंटेन्स द एंजाइम्स यूजफुल फॉर डाइजेशन। ये प्राकृतिक अन्न जो होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं, उसी के अंदर होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करते हैं, जो उसको पचाते हैं। इसलिए उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में हमको वो एंजाइम्स तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस है ये बड़ा एनर्जी एफिशिएंट है। दिस इज ऑल एनर्जी एफिशिएंट बिकॉज देयर इज नो एडिशनल एनर्जी इनपुट। इसमें हम बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा उसमें नहीं डाल रहे हैं, तो एनर्जी एफिशिएंट हो गया ना हमारे ये सारा खाना। और इसकी हमें जब आदत हो जाती है उसके बाद में हमें ऐसा पता चलता है कि ये बड़ा जूसी, टेस्टी, फुल ऑफ लाइफ है। मतलब ये रसयुक्त है, स्वाद युक्त है और प्राण शक्ति से परिपूर्ण है, फुल ऑफ लाइफ एनर्जी, ऐसा है। अब इसको क्यों करना चाहिए, व्हाई शुड आई गो नेचुरल? तो इससे हमें अगर कोई रोग है जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, आधुनिक हमारी जो जीवन पद्धति है उसके कारण हमें जो कुछ रोग होते हैं, आजकल हम सुनते हैं कि लोगों को ये डायबिटीज हो रहा है, मधुमेह, उनको ये कैंसर हो रहा है, कर्क रोग, उनको ये संधिवात हो रहा है, आर्थराइटिस, इस तरह के कई रोग हैं जो होते हैं। ये सारे रिवर्स होते हैं, मतलब ये ठीक हो जाते हैं अपने आप। अभी मैं इसका उदाहरण दूंगा इसके बाद में, थोड़ी देर के बाद। उससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी वेट और बीएमआई जो होता है ना, आजकल हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला वो चेक करते हैं कि आप कितना वजन है आपका, वो सब नॉर्मल हो जाता है। आपकी ब्लड शुगर जो है, अपने रक्त के अंदर जो एक शर्करा होती है वो कम हो जाती है या वो नॉर्मल हो जाती है। ब्लड कोलेस्टेरॉल, उसके बारे में तो कई लोगों को उनके मन में भ्रांतियां होती हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो अपने शरीर में आवश्यक होता है, तो अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो वो नॉर्मल हो जाता है, बढ़ता है थोड़ा सा अगर कम है तो, और अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वो कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर जो है, रक्तदाब, वो भी नॉर्मल हो जाता है। हार्ट रेट जो है हमारा, हमारी जो नाड़ी चलती है ना, हमारा हृदय हृदय गति कहेंगे उसको, वो नॉर्मल हो जाती है, कम भी हो जाती है। तो जितनी कम रहेगी उतनी अच्छी है ना। तो इसके भी मैं उदाहरण दूंगा आपको। अगर हमें कुछ रोग होता है तो बहुत जल्द ठीक हो जाता है वो, एक तो होता ही नहीं है, और अगर हुआ भी तो बड़ा जल्द ठीक हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी होती है ना, इसको कहते हैं कि रोग प्रतिकार शक्ति और रोग प्रतिकार क्षमता, ये बढ़ जाती है, इसलिए हमें रोग होता ही नहीं है कुछ, ऐसा होता है। तो ये इम्यूनिटी क्या चीज है? व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी टू रेजिस्ट एंड फाइट इन्फेक्शन, डिजीज और अदर अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन while having adequate tolerance to avoid allergies and autoimmune diseases. तो अगर हमने कुछ सूंघ लिया या हमारे नाक में अगर कोई धूल वगैरह चली गई तो हमें तो छींक आनी चाहिए। दैट इज द बॉडीज नेचुरल रिएक्शन टू समथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर किसी ने घर में बघार दे दी और फिर भी हम छींके जा रहे हैं, इसको कहेंगे एलर्जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जब सचमुच हमारे शरीर में कुछ ऐसी वस्तु जा रही है जिससे हमारे शरीर को आपत्ति हो सकती है, तो हमें छींक आनी चाहिए। ये हमारे बॉडी का जो इंटेलिजेंस होता है ना, वो हमेशा बना रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है। उससे क्या होगा कि जैसे अभी ये कोरोना का चल रहा है सब पर्व, तो उसमें कोरोना, उसको तो हम दूर तो नहीं रख सकते ना। अगर हवा में है ये सारे वायरसेस या विषाणु, तो हवा के साथ हमारे शरीर में जा सकते हैं, लेकिन हमें उससे आपत्ति नहीं होगी क्योंकि हमारा जो शरीर है वो उसका प्रतिकार कर सकता है। ऐसा होता है, इसको कहते हैं इम्यूनिटी। चलिए इसके बाद में और कुछ इसके फायदे देखते हैं। इससे क्या होता है कि यू हैव ए हेल्दी गट माइक्रोबायोम। हमारे पेट के अंदर कई प्रकार के जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे, और 99% वो उपयुक्त होते हैं, वो हमारे लिए मददगार होते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारे सहायक होते हैं। लेकिन हम अगर गलत वस्तु खाएंगे तो फिर इसका बैलेंस जो होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। हेल्दी गट माइक्रोबायोम रहने से
इन्फ्लेमेशन जो होता है ना हमारे शरीर के अंदर, इन्फ्लेमेशन होता है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि म्यूकस लेवल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जो हमारे शरीर में जो कफ होता है ना वो कम हो जाता है। एलर्जीज नहीं होती उसकी वजह से, बेवजह छीके जा रहे वो नहीं होता है। हमारी जो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी लवचिकता कहेंगे उसको, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे अभी आपने योगासन के चित्र देखे थे, वो अपने आप आ जाते हैं। इम्प्रूव्ड ओरल हाइजीन, मतलब हम सुबह अगर उठते हैं ना तो हमारे मुंह में गंदगी का अनुभव नहीं होता है, फ्रेश लगता है। ठीक? हमारी जो त्वचा होती है वो एकदम ग्लोइंग हो जाती है, मतलब बढ़िया लगती है, दिखने में अच्छी दिखती है। तो ये हमारी जो बहनें हैं यहाँ पर, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है कि ये बिना मेकअप के वो सुंदर दिखती हैं। उसके बाद में रिड्यूस बॉडी ओडर, क्यों हमारे शरीर में कोई दुर्गंध नहीं आती है। अभी इसके बाद हम आपको एक पोल लेने वाले हैं, तो आपके स्क्रीन पर अभी एक पोल आना चाहिए। तो अगर पूजा और अमित हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो अगर हमें पोल दिखाएंगे तो अच्छी बात है। ऑल राइट। तो डू यू हैव लाइफस्टाइल चैलेंजेस यू वुड लाइक टू रिवर्स? आपके जीवन में कोई समस्या है जो आप जिसका निराकरण करना चाहते हैं? यस, कई लोगों के उत्तर आ चुके हैं। तो हमारे मित्र ऐसे हैं कुछ जिनके पास अभी कोई समस्या नहीं है। हमें बड़ी खुशी होती है कि उनको कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे हमारे यहाँ करीब 10-11% ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई समस्या नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कई हमारे मित्र ऐसे हैं कि जिनको समस्या है, तो इस समस्या का निराकरण हो सकता है अगर आप इस प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से सुनेंगे और इसको समझेंगे, और इसके अनुसार अगर आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए हम इसको अभी पोल को यहीं रोकते हैं। तो करीब 86%, 86% उन्होंने कहा कि हाँ भाई हमको कुछ समस्या है और हम उसका निराकरण करना चाहेंगे, और 14%, 14% ऐसे हैं कि जिनको कोई समस्या नहीं है, उनके लिए हम बहुत खुश हैं। चलिए इसके आगे जाते हैं और अगली स्क्रीन पे देखेंगे कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं प्रकृति के जिनको हमने समझना चाहिए। तो उसमें पहला ये है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नेचुरली प्रोग्राम्ड फॉर हेल्थ विच इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड प्रोपोगेशन। तो सारे जीव जो होते हैं ना वो प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होते हैं और रहने चाहिए, ऐसा प्रकृति का नियम है। क्योंकि वैसा रहेगा तभी तो वो जीव पनपेगा ना और आगे जाएगा, उसकी वृद्धि होगी, ये कहते हैं ये। दूसरा जो सिद्धांत है वो ऐसा है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज लुकिंग फॉर फूड एप्रोप्रिएट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड प्रोपोगेशन विच ऑल्सो इंक्लूड्स पैथोजन। यानी हर जीव जो है वो उसके लिए जो उपयुक्त अन्न है, जो उसके सस्टेनेंस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके जीवन के लिए आवश्यक है, और उसके प्रजनन के लिए, प्रोपोगेशन मतलब प्रजनन, मल्टीप्लिकेशन, उनके बच्चे होते हैं, राइट। तो उसके लिए जो अन्न उपयुक्त और आवश्यक है उसको हर जीव हमेशा देखते रहता है या ढूंढते रहता है। जैसे हम भी देखते हैं, अभी देखिए पिछले 4-5 महीनों से हम लोग घर में बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे आवश्यक क्या है? सबसे आवश्यक है पानी और अन्न। हवा तो हर जगह रहती है और हवा शुद्ध हो भी चुकी है, लेकिन पानी और अन्न के सिवाय हम लोग एक दिन भी नहीं रह सकते। मोस्ट ऑफ अस, अधिकांश लोग तो ऐसे ही होते हैं ना कि जिनको उपवास सहन नहीं होता है। ठीक है, तो हर जीव इस प्रकार का अन्न हमेशा ढूंढते रहता है, और जिसको हम विषाणु कहते हैं या पैथोजन कहते हैं या वायरस कहते हैं या बैक्टीरिया कहते हैं, जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करता है, वो भी उस प्रकार का अन्न जो उसके लिए आवश्यक है या उपयुक्त है वो ढूंढते रहता है। अगर हमारे शरीर में उसके लायक अन्न उपलब्ध नहीं है तो वो हमारे शरीर में आएगा ही नहीं।
अगर हम प्राकृतिक अन्न खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर उस प्रकार की कोई भी वस्तु तैयार नहीं होती है जिसमें पैथोजन या विषाणु आकर के रहेगा, इसलिए हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। ये है इसके पीछे का सिद्धांत। ऑर्गेनिजम्स हैव नेचुरल इंटेलिजेंस। हमारे अंदर एक प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है टू एक्सेप्ट एंड एसिमिलेट नेसेसरी और बेनिफिशियल मटेरियल, कि हम जो हमारे लिए उपयुक्त अन्न है उसका ग्रहण करें, उसको हम पचाएं अच्छी तरह और उसको हमारे शरीर में मिला दें, और रिजेक्ट एंड एक्सक्रीट एन अननेसेसरी मटेरियल और हार्मफुल मटेरियल जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है या हमारे लिए हानिकारक है, उसको हम फेंक देंगे। इस प्रकार का प्राकृतिक जो एक इंटेलिजेंस है, ये एक बुद्धिमत्ता है, ये हमारे अंदर हमेशा होती है। ये सारे प्रकृति के सिद्धांत हैं। इसके बाद में हम देखेंगे सम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये हमारे जो मित्र हैं, इनके हम उदाहरण आपको दे रहे हैं। इसको देख करके आपको और समझ में आएगा कि इससे क्या हो सकता है। देखिए, हमारे मित्र हैं मिस्टर पई, इनकी आयु है 52 वर्ष की। बाय फॉलोइंग नेचुरल डाइट एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग आई हैव लॉस्ट मेनी थिंग्स। काफी चीजें खोई उन्होंने। क्या क्या खोया? उनका वजन उनका कम हुआ, उनके कमर के जो इंचेस थे, मतलब उनका जो कमर का जो नाप था वो कम हो गया, एसिडिटी कम हो गई, स्नोरिंग मतलब वो खर्राटे मारते थे वो कम हो गया, निगेटिविटी मतलब हमारे मन में जो नेगेटिव ऐसे विचार आते हैं ना, वो सारे चले गए, और उन्हें शराब की आदत थी वो छूट गई। कितना अच्छा है, विच इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मिरेकल। ये जादू के जैसा हो गया। और उनका जो हार्ट एलिमेंट था वो भी रिवर्स हो गया। तो उनका जनवरी ऑफ 2019 में एक्सीडेंट हो गया था, उसके कारण देखिए उनके चेहरे पर कितने दाग वाग पड़े थे, और 6-7 महीने के अंदर उनका चेहरा कितना साफ हो गया। ये सारा प्राकृतिक आहार के कारण, प्राकृतिक अन्न के कारण हुआ है। दूसरे हमारे मित्र हैं ये, इनका नाम है देवांग कारिया। इनकी कहानी तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। इनका वजन था 104 किलोग्राम मार्च 18 में। उन्होंने प्राकृतिक अन्न खाने के बाद में और बड़ा सख्त जो अनुशासन होता है या डिसिप्लिन, उसका पालन करने से 6 महीने के अंदर इनका वजन 31 किलोग्राम कम हो गया। ये सुबह घूमने तो जाते थे पहले, लेकिन आजकल मैराथन दौड़ते हैं, और 10 किलोमीटर का अंतर ये 60 मिनट में पार करते हैं। तो हमें तो 10 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम 2.5 घंटा लगेगा पैदल पैदल। तो ये मैराथन 10 किलोमीटर का इन्होंने दौड़ा है, और इनकी ये कहानी है। ये कहते हैं कि आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग शुड फॉलो द नेचुरल लाइफस्टाइल टू लीड ए हेल्दी लाइफ फ्री ऑफ ऑल डिजीजेस। अगर हमें रोग मुक्त जीवन जीना है तो हमने प्राकृतिक जीवन पद्धति अपनानी चाहिए, ऐसा देवांग जी हमारे कह रहे हैं। अभी देखिए, ये हमारे और एक मित्र हैं कोठारी जी। ये कहते हैं आई वॉज ए प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक फॉर 8 years। इनको डायबिटीज था 8 साल से, और ये मेटफॉर्मिन खाते थे। इनका A1C जो था वो 6.4 6.6 था, और कोलेस्ट्रॉल था 200-215, और ये रोजुवेस्टेटिन वो खाते थे 2-3 बार। I switched to a natural diet, to a diet that constituted of a lot of natural food along with freshly cooked food। मतलब ये थोड़ा बहुत पका हुआ अन्न खाते हैं या खाते थे, थोड़ा खाते हैं, थोड़ी मात्रा में खाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ हिज फूड 70-80% जो है इनका अन्न प्राकृतिक है। आई मैनेज टू गेट रिड ऑफ मेडिसिन। बिना दवाई के इनका डायबिटीज ठीक हो गया। इनका A1C 5.2 आ गया, कोलेस्ट्रॉल 144 आ गया, और बिना दवाई के सारा। इनकी आयु है 63 वर्ष की। तो इस आयु में भी जो रोग होता है वो रिवर्स हो सकता है, यानी ये आदमी रोग मुक्त हो सकता है, ऐसा इनका अनुभव है। अभी ये देखिए, आज ही मुझे ये आया है। हमारे दूसरे एक मित्र हैं डॉक्टर नावंदर, ये हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, ये हैं अमरावती में। इनकी भी आयु है 63 वर्ष की। इनकी हाइट है 5 फुट 3 इंच। पिछले 6 महीनों से, इसमें देखिए ये आज के पेपर में आई है खबर, इसमें लिखा है, मराठी में लिखा है, शरीरातील पाहुण्यांना उपवासाचा पाहुणचार। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में जो मेहमान आए हुए हैं, इनको हमने, इनकी मेहमान नवाजी की, आदरातिथ्य हमने किया उपवास से। यानी क्या किया, इन्होंने पिछले 6 महीनों से पका हुआ अन्न खाया ही नहीं है,
डॉक्टरांची स्वतःवर ट्रायल, इन्होंने अपने आप पर ट्रायल लिया, 6 महीनों से इनके घर में गैस जलाया ही नहीं इन्होंने। ओके, तो इसके कारण इनका डायबिटीज पूरी तरह से चला गया। इनके बाल जो थे 63 वर्ष की आयु में, अभी वो फिर से काले हो रहे हैं। एनर्जी लेवल जो है, उत्साह जो है, बहुत अच्छा है। और हीलिंग एबिलिटी जो है, अगर कुछ हो भी गया अपने को तो शरीर अपने आप फिर से स्वस्थ हो जाता है, ऐसा इनका अनुभव है। इन्होंने मुझे 2-3 कहानियां ऐसी बताई, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद में स्टिचेस वगैरह आए थे, और वो सारा जो उनका स्किन है वो सारा एकदम क्लियर हो गया 2-3 महीनों के अंदर। ऐसा है अनुभव। अब इनका सबका बताने के बाद अपना भी तो बताना चाहिए ना। मैंने अगर इसको अनुभव नहीं किया तो मैं आपको क्या बताऊंगा कहानी। तो मेरी आयु अभी है 58 वर्ष की, और मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच। अभी इसमें देखिए, मैं ये 2-3 साल से इसका प्रयोग कर रहा हूँ, और अनुभव सिद्ध जो है सत्य, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले नवंबर 17 में मेरा वजन था 80 किलोग्राम, और वो कम होकर के फरवरी तक आ गया 68 किलोग्राम पे। ब्लड प्रेशर था 130/90, तो अभी आ गया है 100/70। पोस्ट मील ब्लड शुगर जो होती है डायबिटीज वाले, वो प्री डायबिटिक जैसा था, मेरा 150 से ऊपर चला गया था शुगर, लेकिन वो 100 से नीचे आ गया। अभी वो 70 और 100 के बीच में रहता है, फास्टिंग और पोस्ट मील। कोलेस्ट्रॉल जो था वो मेरा भी 200 से ऊपर चला गया था, वो अभी 150 से नीचे आ गया। ऐसा होता है, ये सारे अनुभव हैं हमारे। अभी और मोटिवेशन चाहिए, और मैं आपको और क्या बताऊं। देखिए, लोअर फूड रिक्वायरमेंट, हमारे अन्न की जो आवश्यकता है वो कम हो जाती है, और अगर आप कम अन्न खाओगे तो कम गोबर पैदा करोगे, तो लोअर वेस्ट जनरेशन, है ना। और हमारे जो नींद की आवश्यकता है वो कम हो जाती है। फिर क्या होता है कि वी बिकम मोर प्रोडक्टिव, हम दिन में ज़्यादा काम कर सकते हैं। जेट लैग नहीं होता है। अब देखिए, मैं रहता तो अमेरिका में हूँ, लेकिन घूमता हर जगह पे हूँ, लेकिन मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मुझे जेट लैग नहीं होता है। क्विकर कुकिंग एंड क्लीनिंग, अगर खाना आप पकाओगे ही नहीं तो खाना पकाने में जो आपका समय व्यतीत होता है वो नहीं होगा। और अगर आप खाना नहीं पकाओगे तो आपको बर्तन नहीं घसने पड़ेंगे। अभी देखो, ये कोरोना की महामारी में हमारे यहाँ वो काम वाली बाई नहीं आ रही है। अगर बर्तन नहीं करने पड़ेंगे अपने को तो कितनी अच्छी बात है। अच्छा, आप पकाओगे नहीं तो कुकिंग फ्यूल जो होता है, गैस, उसकी बचत होती है। अच्छा, इस ऐसे जीवन शैली में आपको खाना पकाना आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप खाना पकाना जानते नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्या फर्क पड़ता है। जो हमें प्रकृति ने दिया है अन्न, उसी को खाते हैं उसी तरह से। तो कुकिंग स्किल्स आर नॉट नेसेसरी एट ऑल। अभी इसके बाद और एक पोल आ रहा है अपने पास, तो अगर अमित जी हमारे जो मित्र हैं वो दिखाएंगे पोल आपको। तो ये इतना मोटिवेशन आपके लिए पर्याप्त है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इतनी कहानी सुनने के बाद आपको तो ऐसा लगता होगा कि हम ये तो करके ही देखेंगे, बिल्कुल, वी वांट टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, ऐसा आपके मन में आना चाहिए। तो अमित जी, अगर आप पोल दिखाएंगे तो अच्छा होगा। पोल एक्चुअली ऑन है सर, दिख रहा है क्या? ऑन है? अच्छा ठीक है, मेरे पास वो मेरी स्क्रीन वो ऑन नहीं है, इसलिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए, अच्छी बात है। पोल अगर सबको दिखाई दे रहा है तो आप वो पोल में बंद करूंगा, उसका उत्तर दे दीजिए। वंडरफुल। और फिर मुझे बताइए कि उसके बाद में हम आगे जाएंगे, कब जाएंगे तब। तो अभी तक मैंने जो कहानी बताई है आपको, ये सारी अपनी कहानी है। जिसका हमने अनुभव किया है वो सब हमने आपसे शेयर किया है, हमने ये किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा है। तो इसके बारे में आपके मन में अगर कुछ प्रश्न होंगे तो हम उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। अभी आपको अगर प्रश्न है तो वो अगर आप चैट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, और जब प्रश्नोत्तर का समय आएगा तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, फिर आपको हम अनम्यूट करेंगे, फिर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चैट में पूछो सर। आई थिंक बताइए। पोल पोल नहीं दिख रहा है, मैं एक बार दोबारा ट्राई कर रही हूँ। चलिए, पोल ट्राई कीजिए। तकनीकी हमारी जो समस्या है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
ऐसा हम हिंदी में कहेंगे। फॉर टेक्निकल ग्लिच वी रिग्रेट। ऐसा होता है कभी कभी। वंडरफुल। दिख रहा है क्या पोल? मुझे तो ये पहला वाला जो पोल है ना, उसको रीलॉन्च पोलिंग करके लगाना पड़ेगा, फिर अपने को दिखाई देगा, ऐसा मुझे लगता है। करके देखो। ट्राई करते हैं सर। स्टॉप शेयर रिजल्ट्स करके पुराना वाला पोल बंद करके नया पोल डाल के देखो, अगर होता है तो। दिखाई दे रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अगर आगे। बाद में हमें अगर पोल दिखाने का अगर समय होता है तो फिर हम उसको दिखाएंगे आगे फिर से एक बार। ठीक है। ठीक है, चलिए। मेरी स्क्रीन शेयर अभी दिखाई दे रही है क्या आपको? सो वेयर इज माय स्क्रीन? अभी मैंने पोल का जो बटन दबाया था ना, उससे मेरा स्क्रीन शेयरिंग जो था वो मेरे सामने से चला गया है। एनीवे, मैं अपने स्क्रीन में जा करके देखता हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है? दिखाई दे रही है सर। दिखाई दे रही है ना, चलिए ठीक है। अभी ये आगे वाली स्क्रीन चली गई। डू यू हाँ। सी हाउ डू आई ट्रांजिशन? ये दिखाई दे रहा है? यस, वी सी हाउ डू आई ट्रांजिशन। ओके, वंडरफुल। तो हाउ डू आई ट्रांजिशन, मुझे अगर मेरे जीवन में परिवर्तन करना है तो मैं ये कैसे करूंगा? चेंज डाइट ग्रेजुअली एंड ऑब्जर्व चेंजेस। तो ये एकदम से पूरा का पूरा सारा चेंज मत करना। ओके, धीरे धीरे करना। इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स एंड सैलड्स टू 50% ऑफ टोटल फूड इनटेक। अगर आज आप फ्रूट्स या सलाद अगर नहीं खा रहे हैं तो धीरे धीरे उसको, उसकी मात्रा बढ़ाएं और फिर उसको 50% तक लेके जाएं। उससे आगे अगर लेके जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, उसको 100% भी कर सकते हैं। हम लोगों ने तो 100% का प्रयोग कितने दिनों तक किया हुआ है। हम आज भी 95%, 95% हमारा अन्न जो होता है वो प्राकृतिक ही होता है। कभी कभार हम कुछ अगर फ्रेश अगर पका हुआ होता है, कुछ प्रसाद वगैरह होता है, हमारे घर में कुछ पूजा होती है, तो फिर हम कुछ खा लेते हैं। नहीं तो हमारा जो 95% हमारा जो अन्न है वो फल हैं या भिगोए हुए जो दाने होते हैं ना, मूंगफली के दाने हो गए या बादाम हो गए या अखरोट हो गए, वो खाते हैं। ओके, उसके बाद आपका जो अन्न है उसको आप सब्स्टिट्यूट करिए स्प्राउट्स और नट्स वगैरह से। मतलब जो सॉलिड हम लोग फूड खाते हैं ना, जैसे दाल, रोटी, चावल, उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है स्प्राउट्स, नट्स वगैरह से, यानी अंकुरित दलहन, उसके बाद में दाने वगैरह। अच्छा, और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपका जो डिनर होता है उसके बाद में कम से कम 2 घंटे जाने चाहिए बिफोर यू गो टू बेड। सोने से पहले, रात के खाने के बाद सोने से पहले। हम तो ये कहते हैं कि भैया रात को खाना खाओ ही मत, शाम को ही खाना खा लो। मतलब सूर्यास्त से पहले अगर आप खाना खाते हो तो वो सबसे अच्छा है आपके लिए। और फिर अगर किसी कारण से आपको सूर्यास्त से पहले खाना खाना संभव नहीं है, तो फिर आप जब खाना खाओगे तो उसके बाद में कम से कम 2 घंटा तो जाने दो, क्योंकि जो खाया हुआ है अन्न उसको पचने दो, उसके बाद में सो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड ईट ओनली व्हेन हंग्री। तो हमारे जीवन का एक ही नियम अगर उसका पालन करना है, तो मैं जब तक मुझे भूख नहीं लगती है तब तक खाना नहीं खाऊंगा। ये पहला नियम है प्रकृति का। अगर हमें भूख नहीं लगी है तब भी खाना खाते हैं तो हम रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये है। अच्छा, उसके बाद में अभी देखिए कि ईच वन ऑफ अस हैज द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू एंजॉय हेल्थ एंड वेलबींग। हम सब में ये क्षमता है कि हम प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वस्थ जीवन जिएं। और अगर हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और मस्त रह सकते हैं। वी विल ऑलवेज बी हैप्पी, वी विल ऑलवेज बी हेल्दी। ऐसा हमारा अनुभव है और इसको हम आप सभी के साथ शेयर करना, साझा करना चाह रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ और मैं
पूजा से विनती करूंगा कि वो अपना भाषण फिर से शुरू करें। मैं अपनी स्क्रीन जो है उसको शेयर करना अभी रोक देता हूं। तो हमारे यहाँ कितने लोग आए हैं अभी देखिए, वी हैव 168 पार्टिसिपेंट्स। दिस इज फैंटास्टिक। बड़ा अच्छा लगा आप सबको देख करके यहाँ पर। और आप सब लोग पिछले करीब आधे घंटे से ये सारा सुन रहे हैं हमारा, इसके लिए हमें प्रसन्नता है, आनंद है। तो पूजा, अभी यू कैन स्टार्ट शेयरिंग योर स्क्रीन। अभी इसके आगे की कहानी पूजा बताएंगी। Yes, sir. I'm just sharing my screen. फैंटास्टिक, गो अहेड। Is it visible? Yes, it is visible. Go ahead, please. Wonderful. Oh, great. All right. Thank you so much, sir, for those insights. It was a great refresher for me as well. So let's talk about why sattva. Sattva exactly kya hai? So I'll take a step back and talk about my transformation story here. So I have had issues losing weight for most of my life. I had been overweight. I was following a lifestyle that I thought is healthy. Like most of us, we avoid junk food. हम लोग deep fried food नहीं खाते हैं या sweets avoid करते हैं. मैं वो सब करती थी. I used to go to the gym regularly. I was even weight training, and I used to go for my jogs and walks. तो मेरा कुछ वेट लूज होता था, बट देन थोड़े टाइम में फिर से जब थोड़ा भी रूटीन चेंज हो गया तो मेरा वेट वापस सेम हो जाता था. सो कंसिस्टेंटली ऐसा कुछ भी मुझे प्लान नहीं मिल रहा था जो मैं फॉलो करूं और जो मेरे साथ लाइक पूरे लाइफ तक मैं सस्टेन कर सकूं और मेरा वेट लॉस या मैं हेल्दी रह सकूं. उसके अलावा मुझे माइग्रेन्स बहुत होते थे. लाइक एटलीस्ट 2 episodes of migraines I used to get every month with nausea. And those days I just couldn't get out of the bed. I mean, I was absolutely like I couldn't do anything. उसके अलावा मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता था जिसके साथ डिजीनेस था. लाइक मुझे चक्कर था. So it was affecting my lifestyle a lot. Like doctors advised me not to drive because of the dizziness. And my work involves looking at the computer screen for at least 9 hours a day. So I couldn't even focus on the screen. Like I used to see everything moving. So मेरा overall professional life भी impact हो गया था. And then I had hormonal imbalance. So I used to get these mood swings and kind of I used to be depressed. And I had a lot of fatigue. So whenever I came back home from office, I had zero stamina to play with my son or do anything else that I enjoyed. So overall, like it was not a very pleasant experience. And one fine day I came across a post by Dr. Vikram shared by a friend. And there was something about it that just made me get in touch with him. It had his contact number and I just messaged him. And I thought it'll take him few days to respond to me because he was in the US and I thought he'd be very busy to, get back to me. But to my surprise, I got an immediate response and he said, let's connect. And I gave him a call, and that's the time when my transformation actually began. So Dr. Vikram explained to me about what natural diet and lifestyle is. He understood what my challenges are. He was very patient and very warm. And there was something about the way he spoke to me or the way he explained how this lifestyle works that I thought that I should give it a try. And I set out on, following this lifestyle. And it was not very easy because obviously, like when you change your eating pattern, your body reacts in the beginning. So Dr. Vikram was always there to answer my questions patiently. I had a lot of questions for him, like why not like this? Why don't we do this? Why do I only have to eat this? Should I keep this much gap if I'm getting cramps or whatever? But he was always there to encourage me and to make sure that I don't get off the path. So that was really helpful. I don't think I could have done it without that encouragement. Then within few weeks, something really different happened. I was expecting weight loss, but what I experienced is that I felt more alert and energetic. Like this feeling was similar to like how you have a coffee or any caffeine drink which gives you a kick. I got a similar feeling. I was feeling more focused at work, and the difference is that the caffeine effect goes away and then it puts you low, but this feeling was there to stay. Like this energy and this alertness was there to stay. Other great thing that happened is that I realized that I need less sleep now. So I wake up at 4:30 or 5 o'clock in the morning without an alarm. And I wake up fresh. I don't feel that I've slept less. So which means I get more hours in the day and which means I'm more productive.
The weight loss, of course, happened, and I started feeling light. And the lightness that I felt was different than how I was losing weight on earlier diets. Like I had followed Rujuta Divekar's plan as well and a couple of other plans, but with eating natural, the lightness that I felt was very different. It gave a very good feeling. And then my acidity got cured, my dizziness, I got help with that as well. And then now I don't get any migraines, and better hormonal balance, because mentally I felt I felt good about the way my body is feeling, so I was happy. And improved immunity. So I used to get these colds and coughs, fevers frequently, and that improved drastically. I do not fall sick very often, and even if I get a runny nose or something, it gets better on its own in 24 hours without any medication. So this also gives me to face times like this, like these pandemic times, where I feel that I'm equipped to face the external viruses or pathogens if they attack me. And compliments, of course, people around me were complimenting me on the way I'm looking now compared to earlier. So based on my experience, I can easily vouch for this lifestyle and say that this is definitely here to stay with me. And I also tried going back to my earlier eating pattern just to see how I feel. But when I eat the regular stuff, I just do not feel good. My body doesn't feel good, and I automatically go back to natural. And other thing that I would like to share is that the taste buds naturally change. So right now our taste buds are used to tasting very salty food or very sugary food, or food with a lot of masalas and spices that we put. So that has taken away the natural taste buds that we originally should have. So now I appreciate the taste of sprouts or carrots or cucumbers or any fresh fruits that I eat. I can feel the sweetness. So that's, I think, ideally how it should be. And our bodies are basically meant to be eating what nature has given us naturally to be eaten. But because we've made food a religion, because we eat for entertainment, we try to add and process it so that we like the taste of it, but that's not how our bodies are meant to be. And that's the reason we get all these lifestyle disorders that Vikram sir spoke about, like diabetes, cholesterol, PCOS that so many women have these days. So all these are manufactured within us. This is not something that has come externally. So definitely, I mean, this is something that I'm going to follow for the rest of my life. This is the transform me. I was 72 kgs about a year and a half ago, and I came down to 58 kgs now. And it has been a slow progress for me. I did not lose weight in like a couple of months. I took around 11 to 12 months to lose weight, but I think that's been good because it's a steady progress, and I feel good about it. I don't feel that I've had muscle loss or energy loss. In fact, it's the opposite. I feel more energetic now. So that's how the idea of Sattva was born. So the way I have experienced it, Dr. Vikram just spoke about some of the examples, and beyond those also we know many people who are mentored by Dr. Vikram who have experienced these benefits and are like going away from medicines. So the idea of Sattva is to spread this awareness to everybody around us. I think we all should be able to experience this in our lifetime, and each of our bodies have the capability to experience this. So our bodies have natural healing power. All we need to do is just treat it properly and give it what it actually deserves. So like this says, you are what you eat. And I have experienced this literally. Like if you eat natural food, your mind seems to be more clear and alert. So which means diet purification leads to mind purification, which is same as Ahar Shuddhi leads to Chitta Shuddhi. So how can Sattva help you here is what I'm going to talk about now. So I think the first step that everybody needs to take is by investing time for our well-being. So we usually go to doctors and we eat these medicines for the rest of our lives, because these lifestyle disorders, there's no solution in the allopathic medical system, right? So we need to be on these medications for the rest of our lives. So by investing time now to eat the right way in whatever age we are, even if we are in our 20s or 30s, I think everybody should get to this kind of eating, so that in the later lives we do not come across these kind of challenges and we can live life to the fullest. So we are launching our personalized mentoring program where we talk to you one-on-one, because we believe one size does not fit all, right? So not all our bodies would not respond the same way to the same eating pattern. So we work with you one-on-one to see what your
challenges are, what your health goals are, or what are you looking for, and then come up with a plan for you to see like what will work best for you. And it just doesn't stop there. We partner with you till the time you achieve your health goals, and that will be very fulfilling for us to see you achieve your health goals on your self transformation journey. So how do you take the first step towards this journey is to book a 1 hour slot with us by going to our website, and we'll share this URL with you, which at a time that is convenient for you and us both. And then we meet and we talk about your challenges, health goals, and then come up with a plan. And then we also set up one free follow-up with you at a time that is mutually convenient. And we talk about how you are progressing on your path, whether you need some changes. Is 100% raw not working? Should we blend it with something else? So we'll work on all those aspects with you so that you are on track and do not get derailed. So like this says, taking the first step is the most important thing than looking at the complete journey. So here are ways you can connect with us. This is our website, our email address, and our WhatsApp and calling numbers. You can follow us on Facebook, Insta, and LinkedIn, and we'll be very happy to connect with you and work with you on your well-being. So that's all that we have, and we can now open the floor for questions. But let's see if polling can work now. We just have to try this. This is great. Pooja, thank you for sharing your experience, your journey. I will give the credit of your transformation to nature's laws. I don't like to take any credit because all I have done is I have shared my experience with you. You have understood those laws and you have followed those laws with great discipline. So that is what is most important. See, I may be telling you the truth, but unless you follow what I'm telling you, or unless you experience it within yourself, even though I'm telling you the truth, until you have experienced it, it will simply be a fairy tale for you, is it not? So the key is to understand the principles I'm telling you, or I have shared with you, which I have experienced in my own life, and then try to experience those in your life as well. That is the purpose of sharing this experience. Not because I know more than anybody else or I am wiser than anybody else. That's not the case. See, knowledge exists in nature only if we are alert and aware to be able to notice it, right? So that's what we should all aim for. And that's all I'm sharing here and suggesting. What I will do is, while you are working on the poll, I will try to go through some of the questions in the chat I see here and then try to address some. See, some of the questions are a bit personal, which are specific for the person who is asking the question. So I would suggest those people should sign up on the link we have provided, and we can set up a time to talk to you and look at your specific problem. In general, some questions were related to whether we can eat any non-vegetarian food or whether we can consume any dairy products. The food we can digest, we are used to eating, we can continue to eat. I should not advise you to switch from a diet that comprises non-vegetarian food or dairy right now, suddenly all the way to natural food, plant-based food. If you do it suddenly, then what will happen? The gut microflora within your gut will get completely disturbed and all of the microbial population will die at once. Then your body will discard it and you may experience diarrhea during that time. So it is better if you switch from a mostly cooked diet or an animal-based diet, dairy-based diet or non-vegetarian diet. You do it gradually and switch it gradually to plant-based and raw or natural food. That's what I would suggest. Sir, the other question is, in Corona, is it suggested to have food after boiling only? So during Corona, if you are afraid of getting an infection, yeah, you can steam, boil, stir fry it, and then eat it. But most of your food should be plant-based. Then your immunity will improve. And the other important thing is you should eat only when you are hungry. You should not eat if you are not hungry. That is more important than the kind of food you eat.
All right. So until you make this change and make this lifestyle change, the first discipline you should try to inculcate in your life right now is I shall eat only when I'm hungry. It doesn't matter what you're eating. So continue to eat what you're eating right now. Once you start this discipline, if you do this for just 1 week, for 1 week, do this discipline. I shall not eat until I'm hungry. Then after 1 week, you will yourself start realizing what kind of food is good for you and what kind of food is not good for you. When you observe those changes, you will realize that if you are on a plant-based diet, you will feel much better and much lighter. All right. So this experience I have seen from many people. So I have all the data on myself. I've already shared it with you, right? But I have data from many other people who have undertaken this discipline and they have experienced phenomenal results. मेरे कई मित्र ऐसे हैं जिन्होंने ये सारा अनुशासन अपने जीवन में लाया है और उसके कारण उनको जो अनुभव हुआ है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा लगता है उनको. और कौन से प्रश्न है यहाँ पर? कैन वी हैव स्टीम्ड स्प्राउट्स? ऑफ कोर्स यू कैन हैव स्टीम्ड स्प्राउट्स. बहुत ज्यादा उसको कुकर में ना पकाएं. कुकर में अगर पकाओगे उसको तो गल जाता है वो, फिर उसमें मटेरियल तो रहता है लेकिन न्यूट्रिशन उतना नहीं रहता है. तो लाइटली अगर उसको स्टीम किया जाए खुले बर्तन में, प्रेशर कुकर में नहीं, हल्का सा उसको स्टीम करिए और खाइए. So other question, sir, is it all right to have fruits in the evening dinner? हाँ, डिनर में फ्रूट खा सकते हैं. देखिए मैं तो डिनर में या लंच में या ब्रेकफास्ट में जब कभी मुझे भूख लगती है तब मैं फ्रूट्स ही खाता हूँ. तो फ्रूट्स आर गुड फॉर यू. शुड वी टेक कुक्ड एंड रॉ फूड टुगेदर? आप अगर आप उसको पचा सकते हैं तो आप खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते हैं? दीज डेज फूड इज फुल ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स. तो ये पेस्टिसाइड जो है हार्मफुल है हमारे लिए, तो हमारा शरीर उसको फेंक देता है. उसके लिए उपवास की आवश्यकता होती है. तो इफ यू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग विच मीन्स यू डू नॉट ईट अंटिल यू आर हंग्री, अगर आप भूख नहीं लगी हो तब खाना नहीं खाएंगे, तो अगर आप थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड खा भी लेते हैं तो आपका शरीर उसको फेंक देगा अच्छी तरह से, कोई आपत्ति नहीं है. शुड वी स्टॉप मिल्क एज इट कंटेन्स मोर हार्मफुल केमिकल्स नाउअडेज? हाँ, अच्छा है. देखो दूध हमारे लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है? तो अगर आप दूध नहीं पियोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी. कैन डायबिटिक हैव ओनली फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट? हाँ, आप फ्रूट खा सकते हैं. आपका डायबिटीज या शुगर लेवल कितना है वो आपको देखना पड़ेगा या हमको देखना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको तय कर सकते हैं. तो इसके लिए हम लोग सेपरेटली बात कर सकते हैं. इज इट नेसेसरी टू बॉयल सर्टन बीन स्प्राउट्स लाइक ब्लैक बीन्स वगैरह? हाँ, उसको अगर आप अच्छी तरह से सोक नहीं किए हैं या उसको आप कच्चा जो बीन्स होता है या स्प्राउट्स होता है उसको अगर पचा नहीं सकते हैं तो आपको उसको स्टीम करना चाहिए. इफ पॉसिबल प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप खाइए, लेकिन आपको जब भूख लगेगी तभी खाइए. भूख अगर नहीं है तो ना खाइए. शुड वी ईट सैलड एंड मील टुगेदर? हाँ, क्यों नहीं खा सकते हैं. हम लोग खा सकते हैं. हम तो सैलड को ही मील बना करके खाते हैं, उसके अंदर ही हम लोग स्प्राउट्स वगैरह डालते हैं और उसी को मील बना लेते हैं. उसके साथ दाल चावल रोटी वगैरह नहीं खाते हैं. When I don't have food at night, I feel hungry at midnight. हाँ, तो ये धीरे धीरे ये जो हमारी भूख की जो समस्या है वो कम हो जाती है. once you are used to this lifestyle, then this will go away. कितने प्रश्न हैं लोगों के? There are so many questions. This is wonderful. This is an engaging conversation. I'm delighted so many people are here. हाँ, बताइए पूजा. So there is one, I don't want to lose any weight. In fact, I want to gain some. So my question is, would I lose weight if I follow this diet? देखिए, आप अगर प्राकृतिक अन्न खाते हैं तो जितनी आपकी भूख है, जितना अन्न आप पचा सकते हैं उतना अगर आप खाएंगे तो आपका वजन जितना होना चाहिए उतना रहेगा. See, nature will bring you in balance. Nature, a lot of people have a different type of constitution. उनकी जो प्रकृति होती है अलग होती है. हर एक आदमी की प्रकृति अलग होती है. तो somebody may have a leaner body frame, so their weight will be rather low. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. You will feel good from within. हमको अंदर से क्या लगता है
That is what is more important. How many times we can eat per day? You can eat as many times as you are hungry, but you should be very hungry when you eat. Okay, it is better not to eat too many times a day. It is better to eat only twice a day. If you can have that discipline, that will be great. But if you cannot, then if you want to eat thrice, if you get hungry, eat. But you should follow that one rule. मुझे जब तक भूख नहीं लगती है तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी. All right, how can you achieve 50% raw food if cooked and raw food not supposed to be combined? ठीक है, तो एक मील पूरा आप रॉ खाइए, एक मील पूरा कुक्ड खाइए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? जैसा आपको सुविधाजनक है वैसा खाइए. मेक सूप ऑफ वेजिटेबल, विल इट हेल्प? हाँ, सूप खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते हैं उसको, लेकिन इतना ज्यादा मत उबालिए कि जिससे सारा उसका जो सत्व है वो खत्म हो जाएगा. हम तो ये रेकमेंड करते हैं कि आप अगर पकाए बिना अगर खाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा. I keep a gap of 8 hours between dinner and sleep, but I feel bloated. Wow. मतलब जो आप खाना खा रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से पच नहीं रहा है. आई थिंक आप सेपरेटली बात कीजिए तो हम बात कर सकते हैं आपके साथ. स्टीमिंग वेजीज इन ओपन वेसल और क्लोज वेसल. ओपन वेसल में उसको स्टर फ्राई करिए थोड़ा सा, उसके ऊपर हल्का सा एक ढक्कन रखिएगा, प्रेशर कुकर में मत करिएगा, तो चलेगा आपको. आर यू एडवाइजिंग दीक्षित डाइट टू फॉलो? हाँ, अगर आप दीक्षित डाइट उसको ट्राई कर रहे हैं या कर सकते हैं और किया है, उससे आपको अगर फायदा होता है तो आप करिए. दीक्षित डज नॉट रिकमेंड दैट यू शुड ईट ऑल रॉ और ऑल अनकुक्ड और अनप्रोसेस्ड. हमने अनप्रोसेस्ड फूड का प्रयोग किया है और हमको उससे बहुत फायदा हुआ है, इसलिए हम उसको शेयर करते हैं आपके साथ. और ये सत्व हमारा जो स्टार्टअप है उसमें हम लोग प्राकृतिक अन्न जो है उसके बारे में ऑफर करेंगे जब ये लॉकडाउन उठ जाएगा उसके बाद, तो इसका लॉन्च होगा. अभी तो हम लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं. वी आर ओनली स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड वी आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट दिस. सो इफ यू आर interested in learning more about this and if you want to follow this, then you should sign up. और साइन अप करना चाहिए ऐसा कोई आग्रह नहीं है. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है या आपके लिए ठीक नहीं है तो मत कीजिए. आप जो कर रहे हैं वो करिए. देखिए, हमें जो अच्छा लगता है वही हम करते हैं, या जो हमें पटता है वो करते हैं. सो इफ योर माइंड इज नॉट इन सिंक विथ व्हाट यू आर डूइंग, what you are doing will not make you happy. So you should do what makes you happy. If you are not happy with what you are doing currently, अगर आप अभी जिस तरह से रह रहे हैं उसमें अगर आप समाधानी नहीं है, उसमें अगर आपको समाधान नहीं है, उसमें अगर कुछ समस्या है, तो फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. तो अभी कितना समय हुआ है पूजा? Shall we continue this or? Yeah, sir, we can take 2 more questions. We have some अभी more. और 5 मिनट बाकी हैं, तो हम लोग 5 मिनट के लिए और 2-3 प्रश्न ले सकते हैं. So one question is, will it help for spot reduction? हाँ, स्पॉट रिडक्शन हो जाएगा कम. अगर आप प्राकृतिक अन्न लेते हैं तो उससे आपका स्किन क्लियर हो जाएगा, क्लियर होता है. नहीं, आई थिंक इसका मीनिंग है सर कि स्पेसिफिक बॉडी के एरियाज में से रिड्यूस हो सकता है क्या? जैसे किसी को अगर स्टमक पे ही वेट है, फैट है, तो वो रिड्यूस होगा क्या? हाँ, होगा ना इवेंचुअली. देखो, सी द बॉडी विल स्टोर फैट एट दोज लोकेशंस वेयर इट इज कन्वीनियंट नेचुरली. ऑलराइट, if you reduce the amount of total fat, then overall fat will get reduced and it will stay only at those places where it is necessary. So excuse me, so जहां पर हमारे शरीर में फैट की आवश्यकता है, अगर आप फैट बिल्कुल नहीं खाओगे तो आप जो कार्बोहाइड्रेट खाओगे उससे फैट तैयार होगा अपने बॉडी के अंदर. ये प्रकृति का नियम है. ओके, सो मैं तो फैट खाता हूं, ऐसा नहीं कि मैं फैट नहीं खाता हूं. तो जो हम नट्स वगैरह खाते हैं ना, या तेल वगैरह खाएंगे, तो उसमें से भी तो फैट तो मिलता है अपने को. और अगर फैट नहीं है पर्याप्त मात्रा में हमारे इसमें, तो कार्बोहाइड्रेट से फैट बनेगा अपने शरीर के अंदर. ठीक है, तो हम प्राकृतिक अन्न पे अगर रहेंगे तो प्रकृति हमें स्वस्थ रखेगी, ऐसा हमारा अनुभव है. इससे कई प्रकार के रोग जो हैं वो चले जाते हैं. और अगर आप कोई दवाई वगैरह ले रहे हैं किसी और रोग के कारण,
तो अगर आप प्राकृतिक अन्न खाएंगे तो आपका जो रोग है वो जल्दी ठीक हो जाएगा और आपको दवाई लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी। अभी देखिए ना, हमने बताया हमारे जो मित्र हैं उनको डायबिटीज था, वो दवाई ले रहे थे पिछले 7-8 साल से, लेकिन अभी दवाई नहीं ले रहे हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठीक हो गया। ऐसा है। आई एम ऑलवेज हंग्री एंड आई लैंड अप ईटिंग जंक, व्हाट शुड आई डू? तो जंक जो होता है ना, वो बाजार से अपने घर में ना लाओ, तो फिर खाने की इच्छा नहीं होगी। अगर इच्छा हुई भी, फिर भी हम है ही नहीं हमारे पास जंक, तो क्या खाएंगे? घर में इस तरह के स्नैक्स जमा करके रखो, जैसे नट्स हो गए या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो रखो, या फ्रूट रखो, जब भूख लगेगी तो फ्रूट खाओ। जूस और फ्रेश फ्रूट्स, व्हाट डू यू रिकमेंड? वी रिकमेंड फ्रेश फ्रूट rather than the juice, because juice will give you only the liquid portion of it. जो solid portion होता है वो भी उपयोगी होता है, तो उसको हम खा सकते हैं। Does it stop from consuming carbs like wheat and ज्वार? ऐसा नहीं है। देखिए, हर एक अन्न जो है ना वो हमारे लिए उपयुक्त है, अगर हम उसको सही मात्रा में खाएंगे तो। हमारा क्या होता है कि हम लोगों को जो अच्छा लगता है वो हम बहुत खाते हैं, और जो हमको अच्छा नहीं लगता है वो हम बिल्कुल नहीं खाते। वो अगर हमारे लिए अच्छा हो तब भी, ये हमारी समस्या। तो इफ वी आर कॉन्शियस अबाउट व्हाट वी ईट, if we eat only when we are hungry, then we will ourselves know from within us what to eat, when to eat, how much to eat. All of this wisdom will dawn within you. This is our experience and this is what we want to share with you. Explain again about Sattva, what services are you giving? So currently, because of the pandemic, we cannot provide any food or any items for you. We are currently providing only online consultation. That is all we are doing right now. But we will launch further services as time goes. So you should stay tuned for what we are doing. एक है, I had switched to salads as a mid-time snack when I used to be hungry at 11 a.m. in the office, but I could not continue it for more than a week since I started having stomach pain, needed a week of antacids to get back to normal. Was it just a transition phase and should I have continued later? देखिए, ये personalized जो consultation है वो हमने personalized forum में करना चाहिए rather than doing it in the public here. But we can talk about your current lifestyle, what you have done in the past and how it can be changed in the future. उसके बारे में हम लोग आपसे बात कर सकते हैं. What are your views about gluten consumption? तो gluten जो है, अगर आपको सूट करता है, आप उसको पचा सकते हैं तो ठीक है. See, most of the food we eat in small quantities we are able to digest. Okay? But when we eat mostly natural food, then the kind of experience we get from within of health and well-being, it is incomparable, it is indescribable. उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको केवल अनुभव करना होता है. तो इसको आप करके देखें और मौज में रहें. So thank you very much for being with us for the last 1 hour. It's been a pleasure. We will try to connect with you, or you can also sign up on our website and we can talk to you. Absolutely. Whenever it is convenient. Thank you, everybody. It was a pleasure having all of you here. I hope you got the information that you were looking for. Do reach out to us if you have more questions. We might not have been able to answer everything, but do send us emails if there is something in specific that you are looking for, and we'll be happy to connect with you. Wonderful. Have a wonderful evening, all of you in India, and have a great day ahead, people in America. All right. Thank you so much. Thank you. Take care.